Tuesday Tea Time Learn Simply with Kavita Bapat is a platform for the conversation, insights, and knowledge sharing and take work messages, especially the crisp knowledge about various subjects through the conversation with leaders, and they are expert in their respective fields. Today, I'm really proud to say that basically our goal is to provide all the practicing OBGYN as well as doctors to assess the valuable information and knowledge that can help in a growth professionally and personally. Today, I'm really happy and proud to say that we are having today with us Dr. Apoor Puranik, neurophysician of the town. And I'm really happy to talk about that your dedication in both teaching and healing is truly remarkable. You are truly is a fulfill both the roles as a teacher and a doctor is inspiring, and it deserves the higher praise. Your parents have set up foundation for your education, and you have carried that legacy forward with a great pride. Your commitment to learning began in the childhood, and it has shaped you into the accomplished professional you are today. Your academic achievements are exceptional, graduating MBBS in 1975, MD Medicine in 1979 from MGM Medical College, Indore, and it is testament to your intelligence and hard work. You pursued the further specialization in neurology with a DM from AIMS, Delhi, and showcase your dedication to the expanding your knowledge and skills. Your contribution as a professor and your retirement from MGM in 2018 demonstrates still your commitment to the education and nurturing the future generation of medical professionals. Your students have surely benefited greatly from your expertise and guidance. Basically, you deserve the interest, and talents are really, whatever the diverse interest you have and the talents, really impressive. And from the passion of studying, teaching, traveling, and your love for writing and public speaking that has made you tremendously a different person from others. You have a well-rounded personality and enriches the lives to the others. Now your plans and projects such as promoting health education in Hindi, which is really commendable, and advocating for the profession of the patients and working for the multiple books, showing your commitment to make a positive impact on the society, and dedication and research on aphasia, developing educational rehabilitation tools through the websites. Your YouTube channel, mobile apps further showcase the innovative and forward-thinking minds. So overall, sir, that you are an exceptional individual, and this I have got the chance to say all those things about you. Exceptional individual who have excelled in both in the fields of education and medicine. Your accomplishments, passion, dedication are truly praiseworthy, and you have made a significant impact on the lives of the students and patients. And apart from this, you are a very close to me because Dr. Nirja Puranik, she's a close friend of mine. You are a family person. You take the family first also, and all those things. So I'm really impressed by this. And today we were talking together that what subject we should have when we do discuss about the Tuesday tea time and what will be benefited. So you suggested me few subjects, and we ended up into the advocacy for the OBGYN, for the patient themselves and women itself, like that. So sir, can we start our conversation, and welcome to the Tuesday tea time. So sir, the first question which I love to ask you, our conversation will be mixed with the Hindi and English both. So as a general OBGYN who just trying to know most of them, so what is the advocacy, how you put it, and why we have decided this subject? So that's another important. Namaste, Kavita. Many thanks for your kind words. I was really thrilled when you told me that you would be having me on your show. That's a honor for me and my pleasure. And जो विषय मैंने सुझाया था उनमें 2-3 विषय थे, पर उनमें से तुमने इस विषय को चुना। ये है एडवोकेसी। अगर एडवोकेसी को हम हिंदी में बोलें तो पैरवी। तो एडवोकेसी का अर्थ होता है टू प्लीड, एंड टू प्लीड फॉर व्हाट? टू प्लीड फॉर ए कॉज, किसी उद्देश्य के लिए प्लीड करना। और किनको प्लीड करना? दोज हु मैटर। जो जो मान लीजिए कोई स्थिति है, कोई सिचुएशन है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आपको पता है कि यहाँ बात कहने से अपनी बात आगे बढ़ सकती है,
तो वहां जब आप पहुंचते हैं, अपनी पैरवी करते हैं, प्लीडिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं, उसके लिए एक और शब्द होता है एक्टिविज्म। हम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो ये तमाम गतिविधियां एडवोकेसी के अंतर्गत आती हैं। और मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि एडवोकेसी से मेरा परिचय लगभग 15-20 साल पहले हुआ था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, जिसका कि मैं मेंबर हूँ, वो लोग एक प्रोग्राम पिछले 25 साल से चला रहे हैं, जिसमें वो प्रतिवर्ष 25-30 न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बिकम ए गुड एडवोकेट फॉर योर ओन प्रोफेशन। तो फॉर्चुनेटली मुझे उसमें भाग लेने का मौका मिला था। तब से ये कंसेप्ट मुझे पसंद आया, और मैं तमाम मित्रों को जो ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में है उनको यह इसी से शुरू करना चाहता हूँ आज की अपनी चर्चा, कि हम डॉक्टर लोग चाहे किसी भी ब्रांच के हों, हमारा जो कर्तव्य है अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने मरीजों के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, वो केवल सर्जरी करने या डिलीवरी करने या प्रिस्क्रिप्शन लिखने तक सीमित नहीं है। उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, और वो चीजें एडवोकेसी के अंतर्गत आती हैं। करेक्ट। सो सर, मतलब पॉजिटिव चेंज चाहिए हम सब। In a nutshell, with advocacy we need a great positive change. We need यस, it all. So यस। आपके हिसाब से सर, whom should we advocate for? Like you already said, whom we should we advocate for? मतलब किसके हम एडवोकेसी, यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हमको एडवोकेसी इंडिविजुअल्स करनी चाहिए, ग्रुप्स में करनी चाहिए, लाइक दैट। सो ये मेरा पॉइंट था सर, कि किस हमको एडवोकेसी सिखानी किसको है और किसके लिए करनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन विच आई। एडवोकेसी सिखाना तो हमें डॉक्टरों को है। अब अगर हम ओबीजीवायन ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम उनके मेंबर्स को सिखाएंगे, लेकिन ये किसके प्रति लक्षित होगी? इट विल बी डायरेक्टेड टू होम? इट विल बी डायरेक्टेड टू मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल मीडिया। मान लीजिए कि मीडिया वालों को हम बताना चाहते हैं कि एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हमारे ये इश्यूज हैं, जिसके बारे में कि जनरल अवेयरनेस बढ़ना चाहिए और आप इसमें हमारी मदद करिए। या हम उनको बताना चाहते हैं कि ये कुछ इश्यूज हैं जो कि, 1 मिनट में मना कर देता हूँ, मैं आधे घंटे बाद लगाऊंगा, मीटिंग में हूँ। तो हम मीडिया के प्रति अपना एडवोकेसी के एफर्ट वी कैन डायरेक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल, यदि मीडिया में हमारे बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में कुछ निगेटिव आ रहा है और जो हमें लगता है कि वो गलत है, तो वो गलत बताना भी हमारे एडवोकेसी का हिस्सा है, उनको मीडिया वालों को एजुकेट करना। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, they can be CMHO or medical officers, they can be collector, commissioner, they can be at the state level, like the health minister or health secretary or medical directors, and also at the national level। उसी तरह से तो गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांचेस हैं, टेक्नोक्रेट भी और ब्यूरोक्रेट भी, ये भी हमारे एडवोकेसी के टारगेट होते हैं। इसके बाद हमारे एडवोकेसी के टारगेट होते हैं हमारे अपने पेशेंट्स, कि हम अपने पेशेंट्स को एजुकेट करना चाहते हैं, उनको प्रेरित करना चाहते हैं, पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स। इसके अलावा हमारे एडवोकेसी के टारगेट होते हैं ओपिनियन मेकर्स, जो समाज के गणमान्य नागरिक हैं और जो समाज के अंदर सोच को, चिंतन को प्रभावित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशियरी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे एडवोकेसी के टारगेट हो सकते हैं, और ये टारगेट डिपेंड करेंगे हम किस इशू को लेकर काम करना चाहते हैं, और इशू एक से अधिक हो सकते हैं। Yes. So basically, ये this is from the small person to the biggest person. Like मतलब it is for all. Advocacy should इट इज be फॉर done. ऑल, Yeah, यस। it's for all. मतलब everyone should be right. Either the individual है या group है या particular area है या किसी का representation है। और पर सर, हमारे लिए what issues should we advocate? That's another important point. कि एडवोकेसी में आप कौन से इश्यूज, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि किसको एड्रेस करें हम, कि एड्रेस तो हम इन क्या, सबको जैसे करेंगे। कि हाँ, आपको लगता है कि महिलाओं में एनीमिया बहुत ज्यादा है, करेक्ट, हाँ, और लाइक एनीमिया को दूर करने के लिए शासन के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, वो नहीं किए जा रहे हैं, इसको लेके आप एक मुहिम चला सकते हैं। करेक्ट, या या
एक्लेम्शिया की केयर बहुत अच्छी नहीं हो रही है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की केयर पब्लिक हॉस्पिटल में अच्छे से नहीं हो रही है, या कोई पर्टिकुलर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, या गायनिक ऑन्कोलॉजी के अंदर कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, ये सारे प्रयास हमको पब्लिक सेक्टर के लिए ज्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारी ज्यादातर जनता गरीब है। तो Correct. पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में सुविधाएं ज्यादा अच्छे से हों, और प्राइवेट में भी वो रिलेटिवली कम दाम पर मिल जाएं। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों की रीच, उनकी पहुंच बढ़ पाए, ये Correct. इशू हमारे हो सकते हैं। Correct. Correct. मतलब या कोई भी फिर जैसे अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, अभी आजकल हेडलाइन चल रही है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी तक वो एबॉर्शन करनी की है अनुमति मिलना चाहिए। इस पर आपका जो फॉक्सी है एडवोकेट। या आईओजीएस है, ये अपना एक स्टैंड ले सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये महिलाओं का अधिकार है और उनको अपने शरीर के बारे में निर्णय करने का हक होना चाहिए, जिसको हम प्रो चॉइस बोलते हैं। तो वो वाली आवाज अगर हमें उठाना है, तो वो एक एडवोकेसी का इशू हो सकता है। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब कोई भी इश्यूज पे क्या बात की जा सकती है, चाहे हेल्थ केयर की क्वालिटी हो, एक्सेसिंग द हेल्थ केयर हो, जेंडर इक्वालिटी हो, या एड्रेसिंग एनी स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज भी हो सकते यस। हैं। अमेजिंग सर। सो हाउ कैन वी एंगेज द एडवोकेसी, मतलब हम उसमें एंगेज कैसे हो एज अ ओबीजीवायन, कैसे इसके प्रति हम डायरेक्ट करें, कैसे एड्रेस करें, कैसे इसको मतलब हम ये जो या ये जो सामाजिक जागरूकता है, ये अंदर से आती है, और बहुत से लोगों में पहले से होती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर कविता बापट के अंदर है पहले से। तो कई डॉक्टर्स हैं जिनके अंदर वो सामाजिक जागरूकता पहले से रहती करेक्ट। है, और उन लोगों को लगता है कि हाँ, जैसे वो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां थी ना कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो हमको अपने समाज के बारे में, हम जिस फील्ड में, जो हमारा प्रोफेशन है, उस सब्जेक्ट के अंदर हमें लगता है कि सूरत बदलनी चाहिए। यस। वो छोटी से छोटी बड़ी माइनर सी इशू हो सकती है, या वो मेजर नेशनल लेवल का इशू हो सकता है। वो कोई आसान इशू हो सकता है, वो कठिन इशू हो सकता है। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप कितना समय दे सकते हैं, आपके कितने कांटेक्ट हैं, आपके अंदर जील कितनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसी है, हर एक डॉक्टर की अलग अलग होती है। तो हर डॉक्टर अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर सकता है। सबसे एक जो बेसिक चीज है, जो प्रत्येक डॉक्टर कर सकता है, और वो है पेशेंट एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। ये भी एडवोकेसी का हिस्सा है। तो वुमेन्स हेल्थ को लेकर इतने सारे सब्जेक्ट, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सी डॉक्टर हैं जो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम कर रही हैं, लेख लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, टॉक देती हैं, रेडियो पे बोलती हैं, टीवी पे बोलती हैं, इंटरव्यू देती हैं, जगह जगह जाके मीटिंगें लेती हैं, बड़ी बड़ी ऑडियंस के अंदर लेती हैं। ये भी एडवोकेसी का एक उदाहरण है कि आप समाज के अंदर जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो एजुकेशन है, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो होता है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जो मास लेवल पे होता है, जो उसके लिए आपको बहुत ही मेजर इशू, जो पब्लिक हेल्थ के हिसाब से कम्युनिटी बर्डन जिसका बहुत ज्यादा हो। जैसे एक उदाहरण मैंने एनीमिया का दिया, या फिर कोई और दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, या लैक्टेशन के इश्यूज हैं कि जितना ऑप्टिमम लैक्टेशन होना चाहिए बच्चों का, हमारे देश में उसका परसेंटेज कम है। आप मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग चाहते हैं, या महिलाओं के अधिकारों की बात है। वो तो अच्छा हुआ कि अपने देश में मैटरनिटी लीव 6 महीने की हो गई है। जिन देशों में नहीं है, जिन समाजों में नहीं है, वहां उनके लिए ये एक एडवोकेसी का इशू बन जाता है कि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। तो ऐसे कई तरह के इश्यूज हैं। सच बात है। सो दैट दिस मतलब एडवोकेसी कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बेसिकली द पॉलिसी मेकर्स पे जाए, गवर्नमेंट पे जाए, सारी एजेंसीज पे जाए, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पे जाए, जनरल पब्लिक पे जाए। सर एनीथिंग व्हिच इज लाइक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब क्या हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैन ट्रेनिंग बी बेनिफिशियल इन बिकमिंग अ गुड एडवोकेट, लाइक ऐसा हो सकता है, मतलब व्हाट आई फील लाइक। हाँ, डेफिनेटली हाँ ट्रेनिंग से हाँ फर्क पड़ता है। तो हाँ जैसे कहते हैं ना कि किसी के अंदर नैसर्गिक प्रतिभा होती है, हाँ कि भाई वो तो शुरू से ही एडवोकेट है, अपने फील्ड के अंदर एक्टिव है। हाँ। लेकिन सब लोगों में वो नैसर्गिक प्रतिभा नहीं होती, वो छुपी हुई रहती है। करेक्ट। उनके अंदर भावना थी, सुषुप्त है, सोई हुई है।
उन लोगों को अगर ट्रेनिंग मिल जाए और मोटिवेशन मिल जाए और उदाहरण मिल जाए कि हाँ देखो ये लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, ये लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं और ये विधियां हैं उसको करने की, मुझे इस तरह से बोलते आना चाहिए, कोई मीडिया वाला आए तो मेरे को ऐसे इंटरव्यू देते आना चाहिए, मैं हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने जाऊंगी एक मेमोरेंडम लेके तो मेरे को अपनी बात में, वो तो सेक्रेटरी या मिनिस्टर को तो पढ़ने का टाइम नहीं है मेरा खर्रा 5 पेज का, लेकिन मेरे को 5 मिनट में बोलते आना चाहिए मेरी बात कि मैं जो मेमोरेंडम लेके आई हूँ महिलाओं के हेल्थ के इशू के लिए, उसका जिस्ट, उसका सार सार ये है, तो कैसे बोलना, ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग में सीखते हैं। और ये ट्रेनिंग मुझे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी से मिली थी और फिर अगले साल मुझे उसमें ट्रेनर के रूप में भी जाने का मौका मिला था, आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में भी देते रहे हैं। आ, तो मैं तैयार हूँ, यदि Correct, इंदौर की ब्रांच ऑफ गायनी की कोई एक दिन एक वर्कशॉप करना चाहे correct, sir. और उसमें 10-20 गायनेकोलॉजिस्ट आना चाहें तो हम एक छोटी सी वर्कशॉप 2 घंटे की बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में उनको बताएंगे। एक जो अच्छा सा। अमेरिकन एकेडमी की वर्कशॉप हमने की थी वो तो पूरे 5 दिन की थी और उसमें बाहर से बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, लेकिन हम उसकी शुरुआत अपने स्थानीय स्तर पर और एक लघु मीटिंग के अंदर के रूप में हम कर सकते हैं। बेसिकली इसको भी एक अच्छा सा मॉड्यूल चाहिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए, गाइडलाइंस हाँ चाहिए, हाँ हाँ एंड एंड हु कैन गेट इट डन, द एडवोकेसी ट्रेनिंग वो भी चाहिए, एंड हाउ दे विल बी बेनिफिशियल बाय दिस ट्रेनिंग, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, हाँ एंड हाँ। हाउ इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, गाइडलाइंस हो, स्ट्रेटेजीज हो हमारी, यस। एंड हाउ टू एंगेज देम। मतलब सिर्फ वो ट्रेनिंग करके नहीं चले जाए, उसके बाद वो आवाज भी उठाए। हाँ, दैट्स आवाज व्हाट आई। उठाएं और उनका एक फोरम बन जाए और वो लोग आपस हाँ में शेयर करें कि हाँ मैंने ये काम करा, तुमने ये हाँ, काम करा, so तुमको ये अड़चने आई, मेरे को ये सफलता मिली, ये सब उसमें ऑनगोइंग correct. शेयर होता It रहे। should be part of a discussion हो, and how they can engage the policy makers also. यस क्योंकि यस हमारी हमारी हमने एडवोकेसी सीखी, ट्रेनिंग लिया, and then what? So we can engage the policy makers also and public directly. यस। जैसे द वे आपने पूरे टाइम बताया कि राइट फ्रॉम टॉप पर्सन टू बॉटम सबको एडवोकेसी में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो ट्रेनिंग इज अ ग्रेट आइडिया, मेरे को ऐसा लगता है सर। एंड लर्निंग तो कभी खत्म होती नहीं है, या so this is the right time that people should learn about the advocacy also. And I think sub conclusion may you want to speak something about it, so that that will be a take home message from you, and we can conclude our discussion as a dialogue. एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जी सर। जी। आ, जिसको हम बोलते हैं पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हाँ। या सेल्फ हेल्प ग्रुप। करेक्ट। और इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप न्यूरोलॉजी में थोड़े ज्यादा बनते हैं क्योंकि हमारी जो बीमारियां हैं न्यूरोलॉजी की बड़ी लॉक्स। क्रॉनिक होती हैं और ठीक नहीं होती है। कई तो डिजेनरेटिव होती हैं और कई क्रॉनिक होती हैं और लंबे समय तक डिसेबिलिटी बनी रहती है। तो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों के समूह बनाना, उनके सोशल सामाजिक संगठन बनाना, उसको हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं और ये भी एडवोकेसी का एक हिस्सा है। तो मैं कुछ सोच रहा था कि आपके ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में क्रॉनिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, जैसे menopause can एक be, दो नाम मेरे को याद आया, पीसीओडी ना। you know, पीसीओडी किशोरी या यंग स्त्रियों में कॉमन है और अगर उनका एक ग्रुप बन जाए इंदौर लेवल पे, मध्य support. प्रदेश लेवल पे, भोपाल लेवल पे, और वो आपस में मिलें, बातें करें, कैसे ठीक हो रही हैं, क्या इलाज मिल रहा है, कैसे उसने अपना वजन कम किया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या किए, या फिर ऑन्कोलॉजी। आप अपने इंदौर में सबसे अच्छा ग्रुप संगीनी है जो ब्रेस्ट कैंसर के Breast अंदर बड़ा cancer. काम कर रहा है। और कुछ दूसरी मेलिग्नेंसी हो सकती है, ओवेरियन मेलिग्नेंसी वालों का एक ग्रुप बन सकता है। तो जो मेनोपॉज का बन क्रॉनिक सकता है। डिसीज है या एंडोमेट्रियोसिस है या और भी मेनोपॉज कुछ का भी बन बीमारी, सकता है, मेनोपॉज पे ऐसे भी जो बन। जो क्रॉनिक डिसेबलिंग कंडीशंस हैं, उन मरीजों को अगर आप इकट्ठा कर पाए, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का जमाना है, मरीजों के नाम पते फोन नंबर हम लोग आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं और उनको हम ग्रुप बनाएं। और फिर क्या है कि अगर ये ग्रुप मिलके पॉलिसी लेवल पे या गवर्नमेंट की सप्लाई के लेवल पे या हेल्थ फैसिलिटीज के लेवल पे कुछ डिमांड उठाना चाहता है, तो आप मरीज के साथ अगर मिनिस्टर से मिलने जाएंगे तो आपकी बात में वजन ज्यादा होगा। आप केवल डॉक्टर जाएंगे पॉलिसी मेकर के पास तो वजन कम होगा। आपके साथ मरीजों की आवाज होगी कि देखिए ये समस्या है लोगों की और ये लोग डिमांड करने आए अमेजिंग, हैं। तो अमेजिंग, हमें अमेजिंग। पेशेंट्स को अपने साथ लेके चलना है। ग्रेट आइडिया। मतलब ये एडवोकेसी केवल अकेले या इंडिविजुअल नहीं चले, ग्रुप के साथ हाँ, चले, ग्रुप के साथ। सपोर्ट ग्रुप के साथ चले, पॉलिसी यस। मेकर के साथ चले।
So I think any take home message and we can conclude. Thank you so much for joining, sir. You are always सबके लिए इंस्पिरेशन हो आप सिर्फ आप अपने मतलब मैं ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट बट स्टिल आई ऑलवेज फील कि इतना इंस्पिरेशनल टीचिंग का जो आपके अंदर है और बहुत वो दिल से है, मतलब उसके लिए कुछ आर्टिफिशियलनेस नहीं है. सो इट्स रियली प्राउड टू हैव यू टुडे एट ट्यूसडे टी टाइम. एनी टेक होम मैसेज एंड वी कैन कंक्लूड अवर डिस्कशन. तो सभी के लिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने अंदर के एडवोकेट को जागृत करिए और ये सोचिए कि बीइंग ए डॉक्टर is much more than just a surgeon or a prescriber of a medicine or even a counselor. काउंसलिंग भी हमारा बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमें अपने मरीजों की, अपने प्रोफेशन की, हम अपने डॉक्टरों की पैरवी करने की जरूरत समय समय पड़ती है. और अंततः उसका उद्देश्य ये है कि हमारे मरीजों का भला हो, हमारा अपना भला भी हो. एज ए प्रोफेशन यदि हमारी इमेज खराब हो रही है, इन जनरल भी कई चीजें नेगेटिव हैं मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट में, और ऑब्स्टिट्यूशन के बारे में जो नेगेटिव बातें वो दे कैन बी स्पेसिफिक टू ईच स्पेशलिटी. न्यूरोलॉजी के बारे में कुछ अलग नेगेटिव बातें हो सकती हैं, सर्जन के बारे में कुछ अलग नेगेटिव बातें हो सकती हैं. उनको काउंटर कैसे करना मीडिया में, जनता के अंदर, वो क्या हो गया, वो हमारी खुद की पैरवी हो गई. तो हमें अपनी खुद की भी पैरवी करना है, हमें अपने सब्जेक्ट की पैरवी करना है, और हमें अपने मरीजों की पैरवी करना है. इन सब के लिए हमें एक ब्रॉड विजन वाला, एक बड़े होराइजन वाला डॉक्टर बनना पड़ेगा, विच विल बी बियॉन्ड ए मियर क्लिनिकल डॉक्टर और ए मेडिकल डॉक्टर. हमारा जो सामाजिक पहलू है वो ज्यादा उभर कर सामने आना चाहिए. थैंक यू सो मच. सो द कंक्लूडिंग पॉइंट इज अपना विजन बढ़ाना है, ब्रॉड हराइजन करना है और एडवोकेसी. एंड यू कैन डू इट. और मैसेज ये है कि एवरीबॉडी कैन डू इट. हो सकता है कोई बहुत ज्यादा सफल होगा, कोई थोड़ा कम सफल होगा, लेकिन यदि मन में भावना रही और थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल गई तो मैं सोचता हूँ कि अधिकांश लोग कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे. Thank you so much for and thank you each and everyone who has joined today. Those who have not joined can see on the YouTube channel. So I'll send the link so that you can see it. Thank you so much, Puranik sir. Okay. Thank you bye so bye. much. Bye, sir. Thank you so much. Thank you so much.